Yes, we can start now. We are live. So, wait a minute. Hi, good evening, everyone. Uh, we welcome you. We from Sathi, we welcome you. Good evening, Dr. Himanshu. Good evening, Nitika ma'am. Namaste. Uh, can we have the video on, not the audio, of all the siblings and uh, students and professionals? Yeah, Priyanka, we can start now. Asu, give me please. Hi, good evening all. So today, as we know, according to the WHO and UN, we observe the International Day of Persons with Disabilities. So this year's theme is all about building back a better tomorrow towards an inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 world. I think we've heard enough of COVID or Corona throughout 2020 that now that we're already the last leg of 2020, I think today's discussion should probably touch upon how is it for our siblings or how is it for the specially abled in the year 2021, that is how has social interaction changed, because all of us sorry so all of a sudden I experienced that I had to spend almost 24 hours with my sister and work from home. So I'm just sharing a sibling perspective. I'm sure many parents would have also faced this. So we really did know. I saw my interaction, the social interaction with my sister evolve. I'm sure many siblings and parents would echo the same experience. Also, my sister stopped going to the school. So again, how is the education aspects changing? How are the vocational activities changing for them in a post-COVID scenario? And we saw Corona literally cripple our support system. So I think today we've all gathered to understand how are we going to strengthen our support systems. Now, we also have a short fun element included in this whole discussion where you can see we're all yet to be ready for the discussion. So we thought, why not our siblings help us get ready for the discussion? So we do have a fun element where they're going to help us groom. So we just wanted to see, like every day we're there for them. We help them get ready, go for therapy, go out, go everywhere. So I'm sure they already know by now how to get us ready. So this is the overall, uh, I think, direction for today's discussion. Piyush? Yeah, like we can start with the competition or the fun event right now. I think Okay. So for Aman. that, we would want all of them to switch on the videos, please. Yeah, switch on the videos and the siblings. Yeah, so we could take about 5 minutes to get all our siblings, then we can start the event. We also have Aman joining from Aditi's Corner in Mumbai. Yes. Aditi is a sister. She runs a cafe in Mumbai. She has Down syndrome. Right now she's a bit busy in making bills and all.
So I don't. Yeah, you can see Yeah, we can see. guiding her employees, and right now she's making some bills. I will show you one thing. Can we have all the siblings turn on their videos? Pallavi, Prajakta, Hi, bolo. Sharayu. Yeah. Hi, bolo. हाय हाय मैं तो करें Magic. So, Piyush, do we go ahead? We'll time it by. It's almost 6:20 now. Like at 6:30, we will end it. Yeah, Is it fine? 6:30 land. Yeah. So that we can start with the discussion. Yeah. Okay, Divya. Start. Get CC ready. Can we start? Has it started? Yeah. Okay. CC. Come here. I think Vinayak and Divyanka are combing the same way. Same expertise level. And I think all the brothers are cheating. They're not getting groomed at all. Yeah. Just give me 2 minutes. Didi just went to the washroom. She will be coming in a minute. Unfortunately, Gijo's not with me right now. Otherwise, I think he would have a lot of fun grooming my hair. I'll hold. You put the put. Thank you. Divya. Okay, 10 मिनट का 1 सेकंड में ही खत्म हो गया, वो गुस्सा हो गया यहाँ पे ऐसे लगा के. Vinayak, what is he putting, Suvi? He is putting foundation on my face. Okay. चलो अच्छे से करो. Thank you. Take the next thing. Hi Aniket, where is Jijo? You can see a very sincere effort by someone in with the login name of. He is not here right now. He's in my parents' house. Sorry ma'am, you were telling something? There's someone with the login name P. Shivde, if I'm not incorrectly pronouncing it. We can see a very Suvi Pandey. Yeah. And not Suvi Pandey. There's someone called PSHIRUDE. It's me, Prajakta. So, We can see a very sincere effort going on there. she's asking whether we are visible or not.
बहुत अच्छे से देख सकते हैं हम. Okay, thank you. देख रहे हैं हाँ सब. He is doing the most difficult thing now. He's going to put lipstick on my lips. Let's see how he does. And let's give him a red lipstick, no? Matching color, blue. Between on the pathway. See, I'm Vinayak is going all the way, huh? And I see a familiar face, Dia. Where is your brother Sachin? Oh, his special educators come, so he's like Okay. busy with that. Yeah. I think we are done. I think he has done his best. like lipstick मैंने था इधर है. I think, yeah, we are also almost done. With my bindi almost away from the spot. but I'm glad. No, like this, you have to press it now. Yay, thank you. Thank you and bye. Thank you and bye. Bye. Okay, bye. He has found perfume also, and he's putting that also now. Thank you, Vinayak. See, Vinayak getting Suvi. Brownie points for the perfume, huh? Aman is getting all the attention from Aditi, in spite of being in the shop. So I'm just, that's a lot. Also, just look at Gauri. Unfortunately, yeah. we don't have homes and all. Yeah, see, she's also cooking. Allowing me to touch anything. By the way, everyone has to take a picture with their sibling Yeah. after they are dressed. Unfortunately, we didn't have any cosmetic and stuff in our shop. So whatever she could do from her comb, her hand and napkin, and we had some what's this? Pond's cream. Okay. Now our order came, so she is going for that. Hi, bro. तो कॉलेज में
Prajakta is having an entire pampering session only. Please Yeah. remember, we only have 1 more minute to go. We're not going to any wedding. Vinayak has to leave for his class, so he'll just say bye to everyone once. Bye, Vinayak. Vinayak. Bye, Vinayak. Thank Please you. looking lovely, Vinayak. Thanks. आपने बहुत अच्छा किया. हाँ. Thank you. Go. Only Gauri is doing it properly. I think the rest of our siblings chose shortcut method. हाँ, सबसे शॉर्टकट तो मेरा वाला एकदम 10 सेकंड में खत्म. So, Gauri, if we can also come and join you someday, please let us know. This is looking very relaxing what she's doing. Yeah. पूछ रहे हैं कि बाकी लोगों के भी करके देगी क्या तू? हाँ दूंगी ना, क्यों नहीं? Why not? She is saying. Wow. I think waitlist me also then. Or it was a pleasure. So I think it's almost gonna be 6:30. So can we just click a selfie? Like, I mean, not selfie, just a screenshot of the Zoom panel. So that now that we're all ready anyway. Getting our last minute touch-ups. And maybe Suvi can get the perfume bottle also in the shot so that she can get that claim for those brownie points. Yeah, sure, I'll get that. I think he took it with him. That's his favorite perfume, so I think he took it with him. We have to hide all the perfume bottles in our home. Otherwise, Punit will sniff that, like take the smell because of sensory fulfillment. Yeah. Okay, I think Prajakta is ready. Thank you, Gauri. She is like she Awesome. thing in this basket, so she just wanted to show. She has? Sure, Gauri, please show us what is there. क्या क्या है इसमें बताना? इसमें हलद है, आँखों का है, पूरे टिश्यूज, पाउडर, फाउंडेशन, लिपस्टिक, आपूज लिप केयर, ब्रश. Very good. Very clearly, she knows more about beauty than me. Yeah. Actually, I'm very surprised. I would have never thought that Vinayak knows how to use all these products. So it's very shocking for me also. I'm happy that we did this. Our kids are good observers. Exactly. Yeah. Probably they've seen us use these so many times, so they're like, probably this is the best use. Yes. So Piyush, are you clicking one or you have done? Yeah, I'm clicking now. That we can go ahead with the discussion.
Can every sibling pair please look at the screen? We'll be clicking a photo. Divya, come here. Yeah. Divya, come for the photo. Yeah. So they're clicking a photo. You have to see that. Vinayak. Yes, Vinayak is there. Done. Bye. Yes, thank you. Thanks to our sibling for showing patience and not showing patience, both. We can go ahead with discussion, right? Yeah. Yeah. If anyone is hungry, Aditi made some special cakes, cupcakes. Yeah, I am always angry. Once this lockdown is over, Aman, we are definitely visiting Aditi's cafe. It Oh, looks sure. very nice. These like 3-4 cakes are left for today. So she was just like, "Will you eat those cakes?" उसमें रख दो। Priyanka, I think you're on mute. Yeah. So who would be starting the discussion? Nikita ma'am or? Oh, I was waiting for one. Okay, that's okay. I'll start. All right. No, I was just asking. I was told you guys had some queries that you wanted to address, so I was waiting for someone to put up a question. So that's all right. I think probably I'll start by introducing myself. My name is Kamandirata, and I'm the executive director at SASR, and we're very blessed to be joined today by Dr. Himanshu Das, who is the director of a National Institute for Empowerment of Persons with Visual Impairment, and he was previously director of 2 other national institutes of our the Ministry of Social Justice and Empowerment. And I think we are here today to understand primarily from the siblings' perspective. What maybe you can start off by sharing what are the concerns that you've had specifically during this COVID, and what exactly are the queries that you have in mind, so that both of us can address that. I think a common concern is that how will the schools reopen? As in, my brother attends a school known as Sangya Savardhan in Nagpur. So he is in the vocational department. Like now he is doing all the vocational activities. But the thing is, it is still very risky. Like it's not, and especially in a special school where we know that social distancing is not that possible. So that is one of the things. Like so everybody बहुत सारे घर में अलग अलग टाइप के expressions हो रहे हैं. Some people have adjusted. Our brothers and sisters I'm talking, some have not adjusted. My brother has become more aggressive just because he cannot go like there is no playground or nowhere to just run or something like that, or just channelize their energy apart from the vocational activities. I'm talking about physical activities. So this is one of the concerns. And also many SIBs in Saarthi have also have been continuously asking us how to engage them in a productive way. Because what has happened as इतने टाइम तक जैसे अभी प्रियंका ने स्टार्टिंग में बोला था कि इतने टाइम तक बहुत सारे सिबलिंग्स रहे मतलब इतने टाइम तक कोई रहे नहीं थे, मे बी बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी और वर्क. बट नाउ दैट दे आर विथ देयर सिबलिंग्स 24/7, now also they look कि अरे हमको तो काम है, but they are kind of idle. So how do we engage them?
like I'm not talking about all, but many people are like that who don't have anything to do. So these are our concerns, that how to engage them, or what will what will be the new reopening of schools look like? How will they look like? Something like this. Also, I like to add one more thing. Like I agree with Piyush, I have similar concerns, most of us, but just that even when we take a step to start making them socialize, we tend to be overcautious. Like we trouble them more, so they get irritated by that. Like wear masks, sanitize, stay at a distance. They're not used to so much pressure because socializing itself is a lot. So when I'm putting this additional pressure on my sister, she just feels like, okay, I'll not do it. I'll just sit in one corner. Then why do I have to do this? So, and even all the places they enjoyed going to before, like the garden or the mall, I cannot even think of taking her over there, or even going to the theater. Like we used to take her for movies because it's a good leisure activity. So all these leisure activities have also been put as, there's a stop on that also, even on top of them not going to school or to their therapy centers, and us being overcautious. I think it just drives them more irritated than what they were before. So our concerns were mostly around these. Yeah, also as siblings, we also have to be more cautious. As in, if a friend calls me, कि अरे चल वहाँ चलते हैं, I will like no, like if something happens to me, like because we know that many times it is very difficult to take them to hospitals just for the normal checkups, and with COVID, it becomes such complex. It becomes much more complex. So this is also one of the things we observed over the time. So I think before I request Dr. Das to share his view on reopening of schools and how to go about it, I think I'll try to keep my language, I'll try to speak bilingual so that we can cater to a larger audience. So I think primary कोरोना का तो क्या कब स्कूल खुलेगा अभी there we don't really have answers. However, I think as families and as siblings we must target to identify how we can turn our home into learning environments. So कैसे घर का वातावरण को हम एक learning environment बना सकते हैं, routines include कर सकते हैं बच्चे के लिए, right from the morning by the time child wakes up, अपना self care करना, breakfast करना, to having a daily schedule of that has components of academic also involved or vocational also involved in it, but also the child also doing some household chores or the domestic chores, or probably कुछ अपने लिए free time भी मिलेगा, exercise का time भी मिलेगा, yoga का time भी मिलेगा. तो इस तरीके का अगर हम एक schedule बना लें और एक routine develop कर लें, so till the time school reopens we probably will be in a better productive state both for the sibling also and for yourself also. So but अभी school से related query का तो I think I will request Dr. Das to share some insights on it. सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for bringing me in this forum. In fact, last 10 months कम से कम मैंने 200 वेबिनार, सेमिनार या ऑनलाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया. But I would like to tell you that this is the best of all. I am enjoying it so much. समझ में तो पहले बात तो समझ में नहीं आ रहा है कोई हॉलीवुड बॉलीवुड का कोई कंपटीशन हो रहा है ऐसा लग रहा है. All of you are looking so cute, so beautiful, and so much of charmness, happiness in all of your face. बहुत देख के अच्छा लग रहा है. नीतिका मैडम की बातों पे मत जाइए. I am not that old. She is trying to introduce me as यहाँ का डायरेक्टर, वहाँ का डायरेक्टर. I am not that old. ठीक है. I would like to identify myself with all of you as youngster only. स्कूल के लिए मैं आप सब लोगों को डिमोरलाइज तो नहीं करना चाहूंगा, बट आई लाइक टू गिव यू जस्ट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट. इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इज मच लोअर देन अदर्स. इनके इम्यून सिस्टम बाकी बच्चों से कमजोर होते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो बचा हुआ जो भी इम्यूनिटी है, लास्ट ऑलमोस्ट 10 months टाइम बच्चे हमारे खेल कूद नहीं कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जंपिंग वंपिंग नहीं कर रहे हैं. Now the problem is there is a misconception. Immunity system is not related to your cardiovascular system. हार्ट और ब्लड से इम्यूनिटी सिस्टम का लिंकेजेस नहीं है. इम्यूनिटी सिस्टम is run by a system called lymphatic system.
Lymphatic system is some kind of another parallel system like blood circulation system, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसका छोटे छोटे पंप हाउस रहते हैं, और सबसे बड़ा पंप हाउस जो है वो आपका कफ मसल में होते हैं. कफ मसल, लेग्स के कफ मसल, नी के नीचे. तो जब हमारे बच्चों का ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है और वो एक्सरसाइज, गेम, स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम इनकी पहले से भी काफी कमजोर हो चुकी है. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज, अगर किसी कारण से कोविड हो जाए, द मैनेजमेंट चैलेंजेस दैट ऑल ऑफ us are going to have, बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होने वाला है. फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज the life-threatening hazard that you may have because of very low immunity in our children. लाइफ को ही खतरा हो सकता है. तो अंडर द above circumstances, मैं पर्सनली आई कैन एम्पैथाइज विथ ऑल ऑफ यू. आप सबके साथ हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत तकलीफ है माता पिता को, आप सबको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा आप एंटिसिपेट ना करें. बिकॉज मैं अगर आपकी जगह में होता, ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं हिम्मत नहीं करता. एंड दैट इज द रीजन, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्डर इवन एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी, एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज के लिए घर बैठे वर्क फ्रॉम होम परमिशन मिला हुआ है 30 दिसंबर तक. मेरी ऑफिस में वी हैव अबाउट 50 ब्लाइंड एम्प्लॉयज एंड अदर चैलेंज्ड एम्प्लॉयज. उनको हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम परमिशन दिया है. सो नॉट टू एक्सप्लेन मच, आप लोग समझिए, इट इज ए वेरी क्रिटिकल मैटर. तकलीफ तो इस पार भी है, तकलीफ उस पार भी है, लेकिन उस पार की जो तकलीफ है वो लाइफ थ्रेटनिंग तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है. इसीलिए आई वुड नॉट लाइक टू एनकरेज ऑन दैट फ्रंट. थोड़ी सी गलती जो हमसे हो गई है इतने सालों में, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. थोड़ी सी गलती हमारे सालों साल से हो गई है. कुछ आपसे गलती हो गई, कुछ आपकी माता पिता से गलती हो गई, कुछ आपकी ट्रेनर्स या स्पेशल एजुकेटर्स से गलती हो गई, कुछ स्पेशल स्कूलों से गलती हो गई. वो था अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम ऑफ आवर चिल्ड्रन. बच्चों की करिकुलम को समझने में माता पिता, टीचर्स, थेरेपिस्ट सब लोगों ने गलत कर दिया. इन ऑर्डर टू अचीव सम काइंड ऑफ गोल्स, हम लोगों ने एक्चुअल लाइफ स्किल गोल्स जो है उसको हम लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया. कोई रीडिंग में लग गया, कोई राइटिंग में लग गया, किसी को अंग्रेजी सिखाना था, किसी को मैथ सिखाना था, किसी को कैलकुलेटर सिखाना था. द लिस्ट इज सो एंडलेस. वो इतने सारे स्किल्स में इतने सारे साल हम लोगों ने वेस्ट किया कि एक्चुअल लाइफ स्किल के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाए. तो इट इज हाई टाइम, कोविड ने हमें सिखाया कि लाइफ स्किल्स क्या होती है और कितने सारे एरियाज ऑफ स्किलिंग है जो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देना जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस करिकुलम पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें समझना है आने वाला 10, 20, 30, 40, 50 साल के लिए ऑल आवर चिल्ड्रन, कोविड, पोस्ट कोविड और व्हाटएवर, इनके पास आपको 2 रूटीन्स मस्ट बी डेवलप्ड बाय हुक और बाय क्रूक. मतलब तकलीफ होगी चाहे कुछ भी होगी, हमें 2 रूटीन डेवलप करना पड़ेगा. फर्स्ट रूटीन इज ए वर्किंग डे रूटीन. अगर स्कूल है, अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, अगर कुछ ऐसा फैसिलिटी है, जब जाएगा उसको हम कहेंगे वर्किंग डे शेड्यूल. लेकिन आप अगर एनुअली कैलकुलेशन करेंगे, बच्चा स्कूल जाए, चाहे क्लिनिक जाए, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जाए, चाहे कोई शेल्टर्ड वर्कशॉप जाए, चाहे कोई जॉब में जाए, एट द एंड ऑफ द डे, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस कहता है 50% ऑफ द डेज, इसका मतलब मोर देन 150 डेज, मतलब 170 डेज के आसपास आपकी बच्चे ऑफ ड्यूटी में रहेंगे, ऑफ ड्यूटी डेज. सो क्योंकि 150 डेज वो ड्यूटी शेड्यूल में रहेगा, 150 डेज मोस्ट लाइकली ड्यूटी शेड्यूल में नहीं रहेगा. एंड आई कैन टेल यू विथ लॉट ऑफ कन्विक्शन कि ये जो 170 डेज हम कह रहे हैं कि हॉलीडे लाइफ शेड्यूल होगा या ऑफ डे शेड्यूल होगा, दिस इज एट इंक्रीज. सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होते जा रही है, जॉब्स कॉम्प्लेक्स होते जा रही है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, आप लोगों की लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स होते जा रही है. तो डेफिनेटली हॉलीडे शेड्यूल अगर आप देखेंगे ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है. कुछ ना कुछ बहाने का छुट्टी, समर, विंटर, दशहरा, दिवाली, देयर इज नो एंड टू दिस. और बैठ के कैलकुलेशन करेंगे तो दिस 50% एज आई एम टेलिंग यू, आप लोगों को खुश करने के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअली 60% है. 60% ऑफ द डेज आपके बच्चे घर में रहेंगे लाइफ लॉन्ग ऑलमोस्ट.
अंडर सच सर्कमस्टेंसेस ये दोनों रूटीन, हॉलीडे रूटीन एंड वर्किंग डे रूटीन हमें बच्चों को डेवलप कराना होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि स्कूल जब नहीं होते थे, ज्यादा देर तक सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना देर सोते रहोगे मेरा भी शांति, मम्मी का भी शांति, पापा का भी शांति। इस टाइप का एक एटीट्यूड से बाय एंड लार्ज हम लोग ग्रो किए हैं। टीवी में बैठे हुए तो बैठे रहो, थोड़ा सब लोग बिजी है, बैठे रहने तो ज्यादा देर के लिए। तो वी हैव नेवर रियली फोकस्ड ऑन ए रूटीन। फोर्स रूटीन, जब स्कूल या कहीं वर्क में जाना होता है, फोर्स रूटीन फटाफट किसी तरह से नहला के धुला के खंगी करा के किसी तरह से बैग जुटा के भेज दो, उस टाइप का एक कल्चर रहा है। तो इट इज टाइम टू रीथिंक ऑन दिस टू कैटेगरीज ऑफ रूटीन, जो बहुत मुश्किल काम है। आई एग्री, आई एम्पैथाइज विथ यू, बहुत मुश्किल काम है। कोविड के टाइम में बच्चों का तो छोड़ो, आपका और मेरा रूटीन इतना खराब हो गया है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट हमारे लिए जैसा भी है हमारे बच्चों के लिए इट इज वेरी एसेंशियल, ये करना होगा। लेकिन उसके साथ जो चीज हम लोगों ने मिस कर दिया, अगेन स्पेशल स्कूल, क्लिनिशियन, आपकी माता पिता, सारे देश मिलके जो हम लोग मिस कर दिए, वो मिस ये किया कि सिबलिंग का रोल्स, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, उनका एडवोकेसी, उनका सेल्फ एडवोकेसी सॉर्ट ऑफ एरिया, एंड उनका कैपेसिटी बिल्डिंग इन रेफरेंस टू से द सिबलिंग मैनेजमेंट, इन रेफरेंस टू से मैनेजिंग द कम्युनिटी एट लार्ज, जहां आप रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, मार्केट जाते हो, कहीं भी जाते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप मैनेजमेंट, आप लोगों ने ये ऑनलाइन बढ़िया सा एक कार्यक्रम किया है, दैट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, बट फ्यूचर के लिए आप लोग लोकल लेवल में आप लोगों को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहिए। पेरेंट एसोसिएशन कामयाब नहीं हो रहा है दिन ब दिन। वो यंग यूथ में पेरेंट्स का जोश बढ़ा रहता है, बाद में वो फुस पड़ जाता है, बेचारे टायर्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, मेंटली भी वो इतने स्ट्रेस नहीं ले पाते बूढ़े होते होते। कहीं ना कहीं एडल्टहुड में सिबलिंग के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप मैनेजमेंट एक एरिया है। सेल्फ मैनेजमेंट हमने बहुत इग्नोर कर दिया कि आप लोग भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में रहते हो, आप लोगों के भी बहुत सारे तकलीफें होती है, आप लोगों के भी बहुत सारे चैलेंजेस होती है। ये सब चीजों को साइंटिफिकली समझना और उसके हिसाब से आप लोगों का बेटरमेंट के लिए काम करना, जिसको हम लोग हेडिंग दिए है, ओवरऑल हेडिंग इज सिबलिंग सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ द सिबलिंग्स। नेक्स्ट आता है फ्यूचर मैनेजमेंट। फ्यूचर के लिए भी अभी से ही, जैसे आप कह रहे हो स्कूल खुलेगा कि नहीं, स्कूल ठीक है, स्कूल खुल गया, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा। तो फ्यूचर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट डिसेबिलिटी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो सपोर्ट सिस्टम जनरेट करना है हम लोगों को सबको मिलके, इसके ऊपर। तो इन सब सभी मुद्दों के ऊपर जब मिलजुल के हम लोग चर्चा करेंगे, तब ये कोविड पीरियड का जो एक टेंशन है थोड़ी सी हल्का हो जाएगा, थोड़ी सी आसान हो जाएगा। बट आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों को देख के, जाने अनजाने में ऑल ऑफ यू आर फुल ऑफ माइंड्स, एंड माइंडफुलनेस इज द की टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ सिबलिंग्स एंड सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ योर ओन लाइफ। थैंक यू सो मच। चलिए आगे की बात करते हैं। Thank you, sir. I think additional I would want to add कि maybe another thing जो capacity building के अंदर ही आएगा शायद, would be also getting some kind of a formal training, if not formal training, maybe some kind of a exposure to जो आपके घर पे आके स्पेशल एजुकेशन टीचर करते हैं, वो आपको भी ओरिएंट होना जरूरी है, सो दैट एट होम आप बच्चे के लिए बिहेवियर मैनेजमेंट करना हो, चाहे जैसे कभी कोई भी मैल अडैप्टिव या चैलेंजिंग बिहेवियर्स आपको लगते हैं, तो उसके प्रति खुद को फॉर्मली थोड़ा सा जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनके तरफ थोड़ा सा एक्सपोजर और ट्रेनिंग लेना। एंड ऑल्सो घर पे जैसे चाहे हम वोकेशनल का कुछ काम करा रहे हो या एकेडमिक के लिए भी अगर थोड़ा बहुत सुपरवाइज करना पड़े, तो उसके लिए भी व्हाट वुड बी द बेस्ट टेक्निक to probably train your sibling is another area that I think you should look into, because वो फिर that is one area of capacity building that I strongly feel जो long run में बहुत मदद करता है at home management के लिए. So that's the only thing that I wanted to add. Apart from that, I see a very एक question देख रही हूँ मैं chat box में that I would probably request Dr. Das to address, since I think it's coming in from a very young sibling. So she asks that at times siblings भी बहुत ज़्यादा guilt में रहते हैं, and because they're not able to give their time. उनके खुद का भी पढ़ाई है, खुद का बड़े हो जाते तो खुद का ऑफिस है, खुद के एग्जाम्स हैं, so how to cope with that?
as a young teenager or a young adult? There are some psychological reactions जाने अनजाने में आपकी अंदर चला हुआ है, चल गया है, कुछ फेजेस से आप निकल चुके हैं, कुछ फेजेस में आप आने वाले हैं, कभी रिलैप्स होके उस फेज में आने वाले हैं. वो फेजेस सारे यही सब चीजें हैं. क्वेश्चन गिल्ट के ऊपर आया है. इट इज नॉट अबाउट गिल्ट. शॉक इज द फर्स्ट रिएक्शन. क्या हो रहा है? यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. ये क्या हो रहा है? इज द एलिमेंट ऑफ शॉक. देन डिनायल. कुछ नहीं है, उसका ठीक हो गया, इसका ठीक हो गया, उसका ठीक हो गया. स्टेज ऑफ डिनायल. स्टेज ऑफ बार्गेनिंग आता है. अलग अलग जगह से यू ट्राई टू एक्सप्लोर, योर पेरेंट्स ट्राई टू एक्सप्लोर, कुछ हो सकता है क्या. तो बार्गेनिंग, शॉपिंग बिहेवियर वगैरह चलता है. देन थोड़ा सा डिप्रेशन की फेज भी आता है, थोड़ा सा बीच में एक्सेप्टेंस फेज भी आता है, बाद में एम्पावरमेंट फेज भी आता है. ये जो एक्सेप्टेंस और एम्पावरमेंट वाला फेज है कि आपको एक्सेप्ट तो आपने कर लिया है कि आपकी भाई बहन में क्या कमी है, उसमें क्या चैलेंजेस है, क्या दिक्कतें हैं. यू हैव एक्सेप्टेड इट इंटेलेक्चुअली एट ए सबकॉन्शियस लेवल, एट ए कॉन्शियस लेवल आपने मान लिया है. लेकिन आगे एम्पावरमेंट वाला फेज में जाने में अभी थोड़ा टाइम है. दिस इज द पीरियड. ऐसे समय में बहुत ज्यादा ये सेंस ऑफ गिल्ट आता है और इस समय में साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ सिबलिंग्स बड़ी अजीबोगरीब सी होती है. एंड आपको जान के बिल्कुल आश्चर्य होगा, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड. और ये आप लोगों की आगे जाके बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली है. यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड. 90% सिबलिंग्स भाग जाते हैं इस गिल्ट से बचने के लिए, भाग जाते हैं फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या अपने कैरियर में, अपने न्यू फैमिलीज में इस तरह से इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं विदाउट हिज नॉलेज. उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है. इट इज नॉट हिज फॉल्ट. मम्मी पापा दुखी रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया, ये तो बचपन में ऐसा करता था, इतना खेलता था, कूदता था, अभी तो ये बिल्कुल ही नहीं पूछता है, कुछ नहीं करता है, कुछ जिम्मेवारी नहीं लेता है. इट इज नॉट हिज फॉल्ट. इट इज ए नेचुरल साइकोलॉजिकल रिएक्शन. गिल्ट फीलिंग होता है और उसके बाद यू ट्राई टू अवॉइड. दोस्तों में, गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, वाइफ में, उनके फिर बच्चे हो जाएंगे, उनमें वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि सिबलिंग्स को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. इसके लिए तभी मैं कह रहा था कि सिबलिंग का सेल्फ मैनेजमेंट इज ए वेरी बिग काइंड ऑफ ए करिकुलम जो हमने मिस कर दिया. उसके अंदर पहला ही जो एलिमेंट आता है दैट इज प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आप लोगों आज इतना समय है नहीं मैं आपको बता पाऊंगा, बट आई कैन गाइड यू. ऑल ऑफ यू सीम्स टू बी वेरी वेरी स्मार्ट. आप TEDx वगैरह में जाके, गूगल वगैरह में जाके आप लोग लेक्चर सुनना शुरू करिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के ऊपर. दैट विल हेल्प यू because a person with good mindfulness this thing will have lesser amount of guilt. Guilt से बाहर आने में उनको काफी मदद मिलेगा. second जो बात आती है वो आती है resilience development. resilience शब्द आप लोगों ने सुना है? It's a very tricky word. Motivation is far inferior. Inspiration is far inferior. Resilience is a very important word. आपकी जाने अनजाने में आप में स्ट्रेस है, जाने अनजाने में आपकी एंजाइटी है, जाने अनजाने में आपकी कुछ मेंटल वेलनेस कम है मान लो, ऐसे समय में आपकी रेसिलियंस आपकी कम हो जाती है. रेसिलियंस मींस आपदा विपदा या परेशानी, ये सब चीजों से जो लड़ने की एक अंदर से शक्ति आती है उसको हम लोग कहते हैं रेसिलियंस. तो रेसिलियंस जहां कम होगी, जहां माइंडफुलनेस कम होगा, वहां गिल्ट फीलिंग जो है वो ओवरकम हो जाएगा, वो आपको ज्यादा आएगा गिल्ट फीलिंग. तो इट इज हाई टाइम हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपना माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को डेवलप करें, रेसिलियंस स्किल्स जो अपने अंदर होना चाहिए उसको हम लोग डेवलप करें. और जितने मैं सिबलिंग की थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था एरियाज ऑफ ट्रेनिंग, वो सबके ऊपर आप लोग थोड़ा थोड़ा फोकस करना शुरू करें. आई एम वेरी श्योर यू विल ओवरकम दिस गिल्ट. थैंक यू. And also, if I may add, I think at times ना हम लोग as siblings and probably as young adults or teenagers, I think हम अपने ऊपर बहुत pressure ले लेते हैं. So at times it is okay to थोड़ा सा अपने लिए अगर pressure कम करे. So I think based upon, क्योंकि सब लोग अलग अलग family structure से आते हैं, so based upon family structure, I think
अपना time management, as in the amount of time that you are individually dedicating to the sibling with special needs, ताकि to avoid the burnout. Primarily I think ये सारी चीजें burnout की वजह से ज्यादा होती है कि आप the amount of time and the amount of energy that you're giving constantly to a particular person or a particular एक emotion में रह के आपकी probably आप frustrated हो या guilty हो, तो आप emotional burnout हो जाता है. तो वो burnout को avoid करने के लिए I feel कि घर में जितने भी members हैं, अगर equally responsibilities को बच्चे जो भी आपके भाई बहन से जुड़ी हुई जो responsibility है, हो सकता है कई बारी बच्चा physically dependent हो दूसरे members पे, for daily living skills also, चाहे खाने के लिए, चाहे dressing grooming के लिए, या even communication में दूसरों पे dependent है. So उस area में if we can try and identify कि घर में जो भी members हैं उन पे हम कैसे equally responsibilities का distribution कर सकते हैं, so that सभी के लिए, not just you but सभी के लिए वो burnout वाला phase ना आए. So वो अगर हम that's one thing that I think can help कि आपको emotionally cope up करने में help कर सकता है. So that's I think that's the only thing that I wanted to add. I think another question that was shared that I would want probably Dr. Das to first address would be abhi, as we have all agreed कि अभी schools का तो पता है नहीं COVID केस कब कहाँ पे इसका reopening होगा, but what do you suggest is the future for education? क्योंकि अभी अगर हम vocational या skill training की बात करें, या taking cultural activities or sporting activities as the way forward for education or training of our children, how do you see what is the future of education for our children with special needs, Dr. Das? Very, very tricky and a difficult question, but the answer is actually simple. Academically speaking, theoretically speaking, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव स्पीकिंग, वो बहुत लंबा चौड़ा कहानी होती है. बट प्रैक्टिकली अगर आप बात करेंगे, इट टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल. आपके पास दो टाइप के चॉइसेस हैं. एक तो हो सकता है बाय चांस कुछ ऑप्शन फ्यूचर में आ जाए, और एक होता है रेडीली क्या ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा ही बच्चे के लिए. पहले लेट अस क्लियरिफाई आवर माइंड ऑन दैट. बच्चे की उम्र चाहे 15 साल हो चाहे 50 साल हो, दिस क्वेश्चन इज नेवर गोइंग टू चेंज. कि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलेगा घर के बगल में, कोई शेल्टर्ड वर्कशॉप खुलेगा घर के बगल में, कोई एनजीओ सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट में निकल आएगा, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ये सारे बट किंतु परंतु वाले ऑप्शंस हैं. होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा कुछ अता पता तो है नहीं. What options you have, definitely जो आप कर ही सकते हो, वो ऑप्शंस के ऊपर अगर आप लोग सोचना शुरू करेंगे पेरेंट्स के साथ मिलके, then these questions become slightly more easier to understand. इसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है, क्या आप कर पाएंगे. जैसे अमन वर्मा जी के, अभी मैंने शायद आपका नेस्कैफे का आउटलेट देख रहा था, ठीक है, तो उसमें भी आप देखिए देयर आर लॉट ऑफ स्कोप. बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से हम बच्चों को इन्वॉल्व करें. प्रॉब्लम यही आता है वहाँ, अगर अमन जी का बहन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है ऐसा, मैं ऐसे ही उनको एक क्विज टाइप का कर रहा हूँ. मान लीजिए उनके बहन ज्यादा सीवियर है, तो क्या अमन जी के परिवार जो है उनको वहाँ झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, साफ सफाई करते हुए, दुकान खोलते हुए, दुकान बंद करते हुए, कटलरी साफ करते हुए, सब कुछ करते हुए क्या पसंद करेंगे? द मोमेंट यू हैव ए आंसर यस, क्योंकि दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड विद स्पेशल नीड, द मोमेंट यू हैव आंसर टू यस, तो आपकी ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट में बोला था क्या करेंगे, उसका दरवाजा जो है खुलना स्टार्ट हो जाता है. सब लोग मिलके एग्जीक्यूटिव जॉब, एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज, ये सब के ऊपर इतना ज्यादा चर्चा करते हैं हमारे कंट्री में. ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ गंदा सा एक कल्चर रह गया है. आप अगर यूरोप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इट इज ए रिवर्स. टीचर बनने के लिए कंपटीशन यूएस में बहुत कम है, टीचर असिस्टेंट बनने के लिए कंपटीशन ज्यादा है, इंडियन को लेंगे ही नहीं. गार्डनर बनने के लिए कंपटीशन ज्यादा है, सिक्योरिटी के जॉब किसी इंडियन को नहीं मिलेगा, क्लीनिंग का जॉब किसी इंडियन को नहीं मिलेगा, टीचर असिस्टेंट का जॉब किसी को इंडियन को नहीं मिलेगा, केयर गिवर का जॉब किसी इंडियन को नहीं मिलेगा. तो मैनुअल जॉब एक भी नहीं देता है.
They give only the sort of higher level of jobs to us. They respect dignity of labor. तो हम लोग जिस दिन हम लोग ये डिग्निटी ऑफ लेबर को रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, हमारे लिए ऑप्शंस अपने आप खुलने लगेगा. तो इट इज हाई टाइम. आप लोगों की उम्र देख के मुझे लग रहा है, बच्चों का एज देख के भी मुझे लग रहा है, हम एक फ्यूचर दुनिया के हिसाब से सोचना शुरू करें. ऑफ कोर्स विथ फुल माइंडफुलनेस. दोनों ऑपोजिट टाइप के चीजें हैं. माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट लिविंग इन प्रेजेंट. आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर के लिए बात कर रहा हूँ, इस समय मैं बहुत खुश होना चाहिए मुझे. आप लोगों के साथ मेरा दिल, जज्बात सब कुछ होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू रेफर एज माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस के साथ रहते हुए भी कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली हमें फ्यूचर प्लानिंग करना है. और तब आप लोगों के सामने जो है क्या एक्टिविटीज कराना है, बच्चे का करिकुलम क्या होना है, बच्चे का लाइफस्टाइल क्या होगा आगे जाके, पिक्चर आपके साथ क्लियर होना शुरू हो जाएगा. अदरवाइज एडोकिज्म मतलब आज जोश में आ गया जो है, अमन जी जो है सुबह सुबह योगा शुरू हो गए क्योंकि किसी ने इनको कहा इनके सिस्टर का थोड़ा सा ओबेसिटी ज्यादा है, तो जोश में शुरू हो गए विदाउट नोइंग दैट ही मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दैट फॉर ए लॉन्गर टाइम. तो इस तरीके से नहीं होगा. लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से आप लोगों को नीतिका मैम मदद करे, हम मदद करें, कोई और आपके पास लोग हैं उनके साथ मदद करें. लेट अस ट्राई टू वर्क ऑन ए लॉन्ग टर्म ऑप्शन, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल, लॉन्ग टर्म करिकुलम, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट फॉर योर चाइल्ड. ऑटोमेटिकली यू विल हैव ए वेरी क्लियर कट डिस्टिंग्विश आइडिया अबाउट हिज प्रेजेंट. आप चाहते हो कि बच्चा जो है अपने आप सुबह वाला नाश्ता जो है ब्रेड ऑमलेट और ब्रेड में बटर लगा के अपने आप जो भी कॉर्नफ्लेक्स डाल के खा ले. योर करिकुलम इज सेट नाउ. तो कल से जो है पूरे घर को जो है आपका बहन जो है या भाई जो है वो सबको सुबह जो है कॉर्नफ्लेक्स खिला रही है और बनाना खिला रही है. अरे अलग अलग डिश नहीं खाएंगे भाई, जिंदगी भर के लिए हम कॉर्नफ्लेक्स और बनाना ही खाएंगे, ब्रेड और बटर ही खाएंगे. लेकिन बच्चा भी फिक्स हो गया, हम भी फिक्स हो गए. चलो भाई फिक्स. अब पूजा पाठ होता नहीं था घर में, लेकिन आपको लग रहा है कि इसको किसी तरह से अगर सेटिंग कर दिया जाए, तंत्र मंत्र अगरबत्ती धूप दिए हुए लगाने की, तो आधा घंटा कैन गो ऑन इट. चलो भाई आधा घंटे का रिचुअल शुरू कर दो, तो लाइफ विल गो ऑन लाइक दिस. तो 2-4 पौधे आपने लगा लिया, उनको पानी देने में, उनको कुछ इधर उधर करने में यू हैव आइडेंटिफाइड एन एक्टिविटी. तो छोटा से छोटा एक्टिविटीज इसमें आप एंगेज रख सकते हो. धीरे धीरे बड़ा एक्टिविटी तक प्लानिंग करेंगे. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोरलाइज यू, बट आइडिया इज फर्स्ट इनिशियली टू समहाउ एंगेज. किसी तरह से एंगेज कर लीजिए. पॉसिबल भी है. मैंने काफी सारा वर्कशॉप्स किए हैं जहां आप टास्क को कैसे आप सिंपल बना सकते हो. चाय बनाने की तरीका आप अगर देखेंगे, ऐसा अजीबोगरीब तरीका से चाय बनते हैं, हमारे बच्चे बना नहीं पा रहे थे. तो मेरे पास एक स्पेशल नीड की बच्ची थी कई साल, 10 साल के आसपास घर में, तो उसके साथ चाय बनाता था. पतीले में पहले पानी, फिर दूध, फिर अदरक, फिर चाय पत्ती, चीनी, सब कुछ पतीले में पहले से ही सब कुछ डाल के उसको आग में लगाता था. बिकॉज आई न्यू एक बार आग लगने के बाद उसका इधर उधर हो जाता था. तो उस तरीके से मैंने उसके साथ आइडेंटिफाई किया था कि वो तो बहुत सारे काम फिर करने लग गई, बहुत सारे एक्टिविटी करने लगी. राइस कुकर लाके दे दिया और ट्रेनिंग दिया, तो बाद में वो राइस कुकर, जो इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, उसमें वो चावल बनाना शुरू हो गई. उस तरीके से अनगिनत छोटे लेवल में एडजस्टमेंट कर करके शी कुड परफॉर्म मेनी मोर एक्टिविटीज. देन ग्रेजुअली वो जब एंगेज हो गई, सेटल हो गई, बिहेवियरल इश्यूज उसके कम हो गए, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगे, शी स्टार्टेड फीलिंग प्रोडक्टिव. और मतलब एक होता है ना दादागिरी टाइप का, पूरे घर को चाय बांट रहा हूँ, पूरे घर को बिस्किट बांट रहा हूँ, मेरे तरफ से ही ब्रेकफास्ट चलता है, नहीं तो ब्रेकफास्ट किसी को मिलता ही नहीं है. उस टाइप का भाव, मेहमान आने से चाय वही बनाएगी, उस टाइप का जब फीलिंग आने लग गया, देन इट वाज इजी फॉर अस टू एक्चुअली एंगेज द पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव वर्क. थैंक यू जी, थैंक यू. So I think moral of the story वही निकल रहा है कि जितना जल्दी हम घर को लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें, उतना जल्दी हम लोग के लिए आसान होगा. प्रॉब्ली 2 चीजें. एक, टू आइडेंटिफाई बच्चे का खुद का इंटरेस्ट भी कहाँ आ रहा है, कि मतलब व्हाट आर द स्किल्स और व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट द चाइल्ड is relatively more independent at and is more interested in. And second, उसमें से हम कौन सा आइडेंटिफाई करके probably as vocational और skill training वाले एरिया को encourage कर सकते हैं, वो भी हमें हेल्प हो जाता है ढूंढने के लिए. So और उसके लिए आई थिंक 2 चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि लर्निंग एनवायरनमेंट जब हम घर को बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें
हमको घर का एक तो कंसिडरिंग आई सी अ लॉट ऑफ फेसेस जिनमें यू हैव अ चाइल्ड विद ऑटिज्म एट होम, सो उसमें हमको घर का सेंसरी एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एंड ऑल्सो ओवरऑल सभी के लिए सभी के मेंटल वेलबींग के लिए आई थिंक एटीट्यूडनल एनवायरनमेंट ऑफ द होम को भी किस तरह से मैनेज हम कर सकते हैं वो हमें जरूर देखने की जरूरत है, सो दैट यू नो ओवरऑल सभी अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें टुवर्ड्स दैट वन पर्टिकुलर गोल ऑफ यू नो द लॉन्ग टर्म रिहैब ऑफ आवर चिल्ड्रन. So that's what I would want to say to that. I think abhi और कुछ queries I don't see in the chat box. If Ma'am, I have a question. So at Sarthi we have already been working on many topics like future planning and even marriage of siblings and many more topics like work-life balance and all. One of the topics which has not been explored is how can siblings and professionals work together, like disability sector professionals and siblings work together for the well-being of our brothers and sisters. So as you mentioned कि हमको भी therapy sessions में like participate करना चाहिए and all. So यहाँ पे तो जितने siblings हैं सब इतने ज़्यादा active है कि हमारे parents बोलते कि भाई तुम्हारी भी life है देखो. So यहाँ पे we all are super active, but we would like to know that how do you include siblings and what is your message to all the therapy centers जो चलाते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे आप siblings को भी include कर सकते हैं. And also there is another angle. We look हम भाई बहन जैसे ही देखते हैं. We don't consider कि ये task ये कर नहीं सकता. We will be like ये तो कर सकता है इसमें क्या है. So we are more towards that. So what do you suggest to all the therapy centers out there? How can they include siblings in their therapy sessions and other things? Again, देश का ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से in planning the curriculum for siblings and parents as well. कई किताब में तो लिखा हुआ है कि सिबलिंग और पेरेंट के बगैर जो है एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, एम्पावरमेंट कभी हो ही नहीं सकती है. लेकिन थेरेपिस्ट, एजुकेटर्स इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. इसके पीछे थोड़ी सी गलती आप लोगों की भी है, थोड़ी सी गलती पेरेंट्स की भी है. पेरेंट्स ने बहुत सारे संस्था बनाए, हमेशा वो लोग एज ए मैनेजर प्रोजेक्ट किए. दिस इज वन फॉल्ट दैट दे डिड. वो लोग प्रोफेशनल बन के प्रोफेशनल्स के साथ काम नहीं किए. दे ऑलवेज ऑप्टेड टू बी द मैनेजर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैनेजर ऑफ द सेंटर, इन द गवर्निंग बॉडी, इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी. उस टाइप का रोल ज्यादातर पेरेंट्स ने निभाया और प्रोफेशनल्स के साथ एक प्रकार का नेगेटिव रिलेशनशिप यू कैन से, और यू कैन से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप टाइप बन गया. सेकंड आप देखेंगे इविडेंट, बहुत इविडेंट है. कितने सिबलिंग्स आपको आज तक मिले जो डिसेबिलिटी सेक्टर के प्रोफेशनल हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज को ऑप्ट किए हैं? नेग्लिजिबल, वेरी वेरी नेग्लिजिबल. इसका मतलब क्या आप लोग हमें या हमारी प्रोफेशन को कोई फालतू प्रोफेशन समझते हैं, बेकार प्रोफेशन समझते हैं? हमें क्या आप लोग कोई थर्ड क्लास इंसान समझते हैं? इस टाइप का एक माइंडसेट, ये बोलने वाली बात नहीं है. दिस समवेयर इनसाइड प्रोफेशनल्स की मन में ऐसा लगता है एज इफ यू आर ए बायर, वी आर ए सेलर. तो बायर जो है सेलर बनने के लिए तैयार नहीं है, सेलर जो है बायर बनने के लिए तैयार नहीं है. वो एक सेकंड प्रॉब्लम. तो फ्यूचर में आप लोग एनकरेज करिए सिबलिंग्स को कि वो ये दोनों रोल ना लेके बायर सेलर रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को हटा के हाउ कैन दे ऑल्सो बिकम प्रोफेशनल्स. डिस्टेंस मोड में भी कोर्सेस आ रही है, रेगुलर मोड में भी कोर्सेस आ रही है. बहुत एस्पायरिंग कैरियर है. प्रियंका मैडम इतना सीरियस मत होइए. कीप स्माइलिंग. आई एम ट्राइंग टू एनकरेज ऑल ऑफ यू. बहुत सारे कोर्सेज भी है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट कैरियर भी बनता है. लोग पहले बहुत इग्नोर करते थे, डिसेबिलिटी फील्ड जो है चैरिटेबल फील्ड है, इसमें कुछ कैरियर नहीं है, ये नहीं है. बिल्कुल लोगों के बातों में मत जाइए. बहुत बढ़िया कैरियर बन सकता है डिसेबिलिटी फील्ड में. जिसको भी जहां मौका मिले, छोटे सिबलिंग्स को उनको आप लोग अवेयर करा सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं. ये तब ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज एक नेचुरल गैप के रूप में काम करेगा. नेचुरली ये ब्रिज जो है थोड़ा सा गैप को कम करेगा. उसका अलावा आपने जो कहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग करिकुलम में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को नीतिका मैडम, सारथी और इस प्रकार के सारे सिबलिंग्स मिलके आप लोगों को लिखना चाहिए
कि जिस तरीके से पेरेंट ट्रेनिंग कंपोनेंट या पेरेंट का इमोशन जानने की कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ एवरी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, उस तरीके से आज की डेट में सिबलिंग्स का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और सिबलिंग्स अगर 90%, जैसे मैंने कहा 90% सिबलिंग्स अगर बच्चों के साथ छोड़ देंगे तो क्या ही एम्पावरमेंट, कैसे चलेगा, तो देश ही नहीं चलेगा। तो हम लोग मिलकर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को 2 टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनके। एक है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम में सिबलिंग कंपोनेंट हम उसमें डाल सकते हैं, सो दैट ऑल द प्रोफेशनल्स विल अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड द रोल दैट यू हैव टू प्ले। सेकंड एक इमीडिएट रास्ता है, दिस प्रोसेस में टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। सेकंड एक इमीडिएट रास्ता है, जितने भी प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड होते हैं इस फील्ड में, वो लोगों को साल में 15 से 20 दिन कुछ ना कुछ वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग करना होता है, जिसके बगैर उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं होती है। तो उसमें हम लोग आरसीआई के साथ बात करें, एज ए नेशनल इंस्टीट्यूट मैं भी इनिशिएटिव लूंगा, आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि हम लोग वो जो लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसेस में 20 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करना ही पड़ता है कंपलसरी, उसमें हम कम से कम 2-3 दिन रिजर्व रखें इन अंडरस्टैंडिंग द सिबलिंग डायमेंशंस। थैंक यू जी, थैंक यू। और पोस्टर्स वगैरह भी हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं, वेबसाइट, सोशल मीडिया की यूज कर सकते हैं। आप लोग बढ़िया बढ़िया स्टिकर बनाइए, बिल्कुल जोरदार वाला, साइकोलॉजिकली अपील करने वाला, ब्यूटीफुल पोस्टर्स, ब्यूटीफुल स्टिकर बनाइए, that you as sibling is seeking assistance, seeking help, seeking support, seeking partnership of professionals, इस टाइप का कुछ कुछ आप लोग बनाइए, and we assure you बिल्कुल वायरल हो जाएगा। Thank you. Thank you so much, sir. This is a very nice idea. कर सकते हैं, we can really do this. सवाल मुझे पूछना था आपसे, हमारे पास समय थोड़ा कम है अब, इसलिए मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हम लोग, आपने बहुत सारे पहले तो बहुत अच्छी बातें बताई हमें, कुछ चीजें जो आपने बोली शायद हम उस डायरेक्शन में नहीं सोच पाते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरीके से रखा है सामने तो ये मतलब ये सोच हमारे में भी अब आई है, स्पेशली जो लास्ट क्वेश्चन पीयूष ने पूछा था उससे रिलेटेड। तो मेरा जो सवाल है कि अभी अचानक से सबकी लाइफ में एक चेंज आया है और हमें ही इतनी मुश्किल हुई है इस चेंज को एक्सेप्ट करने में, स्पेशली कोविड पीरियड में सब घर पे हैं और अचानक से सारी चीजें ऑनलाइन करना पड़ रहा है, और ये पूरा चेंज हमने अपने भाई बहनों को भी एक तरीके से सिखाया पूरे इतने सारे महीनों में, अब वो एडजस्ट भी हो रहे हैं उससे, फिर अचानक हमें वापस पुराने रूटीन में जाना है विद थोड़ा और एडिशनल चेंजेस। तो वो चेंज वापस से उनको समझाना, और आप जानते हैं कि हमारे भाई बहनों के लिए चेंज किसी भी टाइप का मुश्किल ही होता है एक्सेप्ट करना। तो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि कोई टिप्स या गाइडेंस जिससे ये ट्रांजिशन जो है थोड़ा आसान हो जाए, होगा तो मुश्किल ही हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं जिससे सबको थोड़ी आसानी हो। पहला टिप्स तो यही है, हमारे बच्चों का तो सुबह उठने का, खाने का, नहाने का, टॉयलेट बाथरूम जाने का, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके आई विल रिपीट। सबसे पहले तो हमारे बच्चों का सुबह उठने का, डेली कोर्स करने का, नहाने का, खाना खाने का, चाय पानी पीने का, रात को सोने का, ये रूटीन जो है आप फिक्स करिए, कोविड, पोस्ट कोविड, हॉलीडे वर्क, चाहे कोई भी वर्क हो, इंक्लूडिंग चेंज ऑफ ड्रेस, इंक्लूडिंग चेंज ऑफ ड्रेस। मैंने पर्सनली ये महसूस किया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आज अगर नहीं भी नहाया तो एक ही ड्रेस में मैंने 2 दिन निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। हमारे बच्चों के साथ ऐसा रिस्क आप मत लीजिए, इनका वेकिंग अप टाइम से लेके, सोने का टाइम से लेके, खाने का टाइम से लेके आप कोशिश करिए। कोविड के टाइम में जैसे मैंने मेरा पूरा सोने का, खाने का, उठने का, मैंने सारा अपना बिल्कुल जिंदगी खराब कर लिया है, ऐसा रिस्क आप बच्चों के साथ बिल्कुल ना ले। फर्स्ट टिप्स यही है आपका, उससे ट्रांजिशन काफी आसान हो जाता है। कितने समय मान लीजिए स्कूल जाता था वो, कितने बजे उसको उठना पड़ता था, उसके बाद वो क्या क्या करते थे, कितने बजे स्कूल का टिफिन होता था, फिर वो लंच करते थे। तो ट्राई टू मेंटेन दैट रूटीन, ऐसा नहीं उसको उलट पुलट करते रहने से प्रॉब्लम होता है। सेकंड ये होता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था, ऑफ डेज एंड ऑन डे रूटीन।
जो ये उसको आप स्कूल जब जाता था उसको ऑन डे रूटीन कहते हैं। ऑन डे रूटीन के जो टास्क है वो जो ओरिजिनल टास्क है उससे रिलेटेड टास्क उसके रिलेटेड रूटीन ही रखिए, भले कुछ हो नहीं रहा हो। मान लीजिए स्कूल में जाते थे तो पेंटिंग का था, मान लीजिए कुछ डांसिंग का था क्लासेस, या पेंटिंग का था, या दिया बना, कुछ भी आपको आई डोंट नो, उसका स्कूल के करिकुलम में आपको आइडिया होगा कुछ था, उससे रिलेटेड टास्क में वो वाला टास्क उस समय का जो उस पर्टिकुलर पीरियड है उसको उस काम में जरूर आप एंगेज करें, भले 10 मिनट के हो 15 मिनट के लिए हो। ये दो प्राइमरी इश्यूज हैं, बाकी तो इट विल डिपेंड ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड, केस टू केस, लेकिन ये दोनों आप लोग जरूर अपनाने की कोशिश करें। थैंक यू। And also, if I may add, I think अभी हम लोग what we do as siblings or as family is कि हम कुछ नया भी सिखा रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फुल टाइम 1:1 में बैठ के और खुद 100% असिस्टेंस देके कराते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और वैसे ही कराते रहते हैं, वही शेड्यूल रखते हैं। सो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे वो सपोर्ट जो या फिजिकल हो, चाहे वर्बल सपोर्ट हो, चाहे जेस्टर देने वाली सपोर्ट हो, कोई भी एक्टिविटी करते वक्त बच्चे को, वो आप सपोर्ट धीरे धीरे फेड करने की कोशिश करेंगे। कैसे आप धीरे धीरे वो सपोर्ट को मिनिमाइज कर देंगे सो दैट द चाइल्ड इज गेनिंग मोर इंडिपेंडेंस टुवर्ड्स दैट स्किल। सो वो एक चीज है जो प्रोबेबली अपार्ट फ्रॉम एडिंग द शेड्यूल थिंग होगा कि ऑल्सो जैसे सर ने भी बोला कि हम सबका ही रूटीन थोड़ा गड़बड़ हो गया सिंस वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। सो मे बी हम अपने शेड्यूल में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज अगर डाल लें, चाहे जैसे अभी पीयूष जी ने बोला था फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह सबका लिमिट हो गया है, सो मे बी that will not only help us or the other parents or the other family members, but हम अपने भी रोज इवनिंग का ही जैसे सर ने बोला कुछ शेड्यूल में डाल दे कि हम अर्ली मॉर्निंग 7 बजे योगा करेंगे, सारे करेंगे, सो वो बच्चे को भी उसमें इंक्लूड होगा। सिमिलरली शाम को हम प्रोबेबली हैव अ गेम ऑफ कैरम बोर्ड और गेम ऑफ लूडो फॉर दिस टाइम टू दिस टाइम। सो वैसी चीजें भी अगर हम रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड कर लें जो कि इधर वर्किंग डे की हो या नॉन वर्किंग डे की हो, सो वो एज फैमिली भी आपको अपना डायनामिक्स बेटर करने में मदद करता है। एंड ऑल्सो वो धीरे धीरे द सपोर्ट दैट द चाइल्ड इज सीकिंग फ्रॉम यू towards completing that activity, वो भी धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशन बच्चे की मिनिमाइज हो जाती है और वो relatively independent हो जाता है। So लाइटर नोट, मैं एक सड़क से बिल्ली का बच्चा उठा लाया, सड़क से एक मैं बिल्ली का बच्चा उठा लाया, वो भी 5 मिनट का एक्टिविटी है, डेली 4 बार खाना देना पड़ रहा है उसको लेके। So you're suggesting getting a pet, suggesting माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में वो छोटा बिल्ली का बच्चा ही काम में आ गया मेरा, बस you never know कहाँ से किस तरीके से you can help yourself or you can help your siblings, you never know, keep practicing। मैंने the idea is identifying as many responsibilities at domestic work that you can give to the child depending again upon उसका क्या क्या अभी एबिलिटीज है। और मगर अगर एबिलिटीज कम भी लग रही है तो जबरदस्ती दे दो, इनिशियली सपोर्ट कर लो उसको काम करने में और धीरे धीरे वो सपोर्ट को रिमूव करते रहो। ढेर सारा मैंने बोतल उठा के लाया, वो जो फ्लावर एक्चुअली बोतल में डालने से ग्रो हो जाता है उस टाइप का फूल लगा रहा हूँ अभी पूरे घर में चारों तरफ। क्या करूँ? You have to somewhere find some ways to relieve yourself or keep yourself engaged। कुछ अजीबोगरीब काम कर रहा हूँ, जैसे पुदीना उठा लाया मार्केट से, उसको जबरदस्ती डेली सुखाने दे रहा हूँ, डेली उसको इकट्ठा करके घर के अंदर लगता हूँ, उसको मिक्सी में पाउडर बना के रखूंगा। ऐसे आप आई कांट रियली एक्सप्लेन यू, मैं कितने सारे ऐसे अजीबोगरीब काम में एंगेज रखने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को भी और मेरे साथ के लोगों को भी। And a few other techniques like probably give जो आपके बच्चे के साथ most likely स्कूल में या वोकेशनल सेंटर पे यूज होता होगा, जैसे कि यूजिंग अ टाइमर। आपने कोई दिन भर के लिए जो भी काम दे रहे हो वो काम से रिलेटेड में भी एसोसिएट अ टाइमर विद इट, सो दैट आपको वर्बली बार बार रिमाइंड नहीं करना पड़ता, तो आपका भी burden of आप भी अपना काम कर पाओगे, वो भी एक एरिया है। एंड ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड इट इज ओके टू गिव सम फ्री टाइम ऑल्सो टू द चाइल्ड। ये नहीं कि 24 घंटे है तो 24 घंटे का बैक टू बैक बिजी रहना है बच्चे को। इट इज ओके, हम लोग भी फ्री टाइम डिजर्व करते हैं तो हमारे बच्चे भी फ्री टाइम डिजर्व करते हैं। द चाइल्ड कैन एंगेज इन समथिंग दैट द चाइल्ड एंजॉयज, चाहे वो कोई सेंसरी एक्टिविटी हो, कोई सेंसरी टॉय हो या कुछ भी हो। सो फ्री टाइम देना इज ऑल्सो ओके। सो प्लीज डोंट कंसिडर कि खाली बैठा है। सो खाली बैठना ऑल्सो इज गुड फॉर हेल्थ। So रियल काम भी छोटे छोटे आप अगर दिमाग लगाएंगे बहुत से निकल जाएगा। मैं जैसे बोला मेरे साथ स्पेशल नीड की लड़की थी, आप लोग उसको निगेटिवली नहीं लेना,
उसको मैंने ट्रेनिंग कर दिया कि मेरा मोबाइल चार्जिंग लैपटॉप चार्जिंग, उसको दूसरा कुछ आता ही नहीं है बेचारी, मेरे ऑफिस से आते ही कूद पड़ती है, दुनिया इधर के उधर कर देगी, सबके मोबाइल का चार्जर फेंक देगी, मेरा मोबाइल और मेरा लैपटॉप सब चार्जिंग में डालेगी। मैं ड्रेस जानबूझ के ड्रेस जो है मैं आजकल जो है ड्रेसिंग रूम में अच्छा से रख के वो करता हूँ। जब वो थी मैं जूते इधर, मुझे इधर शर्ट इधर पैंट उधर फेंक दूंगा क्योंकि मुझे पता है वो एकदम फाड़ के आएगी, वो सारा ठीक से रखेगी। सो यू नेवर नो, मतलब बट आई हैव फाउंड इज अगर रियल एक्टिविटी, रियल कुछ रीइंफोर्सिंग रियल लाइफ एक्टिविटी में ज्यादा एंगेज कर सकते हैं, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। बहुत ज्यादा अंदर से खुशी होती है बच्चों को, देन दे रियली स्टार्ट गेटिंग मोर इन्वॉल्व। थैंक यू। So I have a question. So this is related to siblings. So post COVID, like there are a lot of sibling led initiatives which was started along with their specially abled brother or sister to kind of create a livelihood for them. And then COVID came and a lot of changes happened, right from the fact that they have to like take a pause and probably not do that activity, be it anything like diya making, chocolate making, it can be any small livelihood which was created. And now say they're not able to see it delivered, they're not able to do that. So not only is their specially able brother or sister stressed, but even the sibling is stressed because they don't know how to now take this enterprise ahead or what should they do. So they're in a fix. So what do you suggest, like how can siblings who have such initiatives deal with it in a post COVID environment? Also, one more thing, when all of us were discussing about capacity building, I felt that what if like a lot of siblings cannot or do not want to go down the professional path, like they do not want to get a degree in special ed, or they do not want to even do a distance learning course. So in such cases, how do we then approach capacity building? Like what can they do apart from being there for their sibling? And they have just seen them, they've grown up with them. That is all the preparedness they have. So how do they address capacity building? नहीं मैम, सबको प्रोफेशनल नहीं बनना है। दिस इज जस्ट ए वे हाउ द ब्रिज विल बी गैप्ड। आप लोगों में से कुछ बनेंगे संस्था के मालिक, कुछ लोग क्लिनिक चलाएंगे, कुछ लोग प्रोफेशनल्स बनेंगे, कुछ लोग एनजीओ चलाएंगे, कुछ लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मली चलाएंगे, कुछ लोग एडवोकेसी मूवमेंट चलाएंगे। तो ऑटोमेटिकली ये ब्रिज जो है धीरे धीरे काम में आएगा। दूसरा जो आप लोगों ने कहा था कि पोस्ट कोविड की बात नहीं है, मुझे लगता है सपोर्ट जनरेशन जो करना होगा। सबसे पहले आप देखिए, आई वुड आज आपकी सिस्टर अगर कुछ मान लीजिए बना रही है चॉकलेट, तो सुबीजी खरीद ले। फिलहाल सुबीजी कुछ बना रही है तो नीतिका मैम ले ले, नीतिका मैम का सामान जो है अमन जी ले ले। द मूवमेंट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। जब हम खुद ये मूवमेंट शुरू करेंगे, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह होंगे ना, जिनमें हम लोग एम्पैथी जगाने की कोशिश करेंगे, उनमें ये चीज हम डालेंगे। ठीक उसी तरीके से दिस मूवमेंट हैज टू ग्रो। अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन ओनली सोल आउटसाइड पीपल कमिंग इन, दैट इज नॉट ए वेरी गुड आइडिया। वी विल हैव टू स्टार्ट ए मूवमेंट ऑन आवर ओन, सपोर्टिंग ईच अदर। तभी आई एम यूजिंग द वर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऑल ओवर इंडिया के लोग यूनाइटेड होना शुरू करें, आप लोगों का कोऑपरेशन कोलैबोरेशन एस्पेक्ट बढ़े, देन यू विल सी सिबलिंग को सपोर्ट करने वाला भी अलग से नेटवर्क इवॉल्व होगा। यू विल कम विद लॉट ऑफ वॉलंटियर्स। कल ही मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप लोग एक फेसबुक स्टिकर बनाइए, सिबलिंग सपोर्ट करने के लिए आपको वॉलंटियर चाहिए। आप बोलिए इतना समय देना पड़ेगा आपको वीडियो कॉल करके मेरे भाई के साथ बात करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। आप देखना, सच से ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स यू विल गेट। बहुत आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। लेट अस स्टार्ट विद आवरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव। आई कैन एश्योर यू, आपको वॉलंटियर सपोर्ट आपकी सहपाठियों से शुरू होगा, आपकी बेस्ट फ्रेंड से शुरू होगा। अब देखना, बेस्ट फ्रेंड का भाई बाद में कूद पड़ेगा, फिर बेस्ट फ्रेंड का बहन कूद पड़ेगा, फिर उनके चाचा चाची के बच्चे आ जाएंगे, उनके क्लासमेट्स आ जाएंगे। तो once you start promoting in the right perspective, I am very positive things will happen. Thank you. Thank you. And also abhi COVID या post COVID भी I think a lot of enterprise is going to be online. So I think how you can utilize the forum of online
digitization of your work that you've identified to do, वो भी थोड़ा सा मदद कर सकता है आपको. ऑल्सो जैसे सर ने बोला, आई थिंक यंगर जनरेशन सिबलिंग्स के लिए ये एक आइडिया है, या फिर जैसे पीयूष जी भी पूछ रहे थे कि हाउ टू इंश्योर कि आप लॉन्ग टर्म में चाहे सेंसिटाइजेशन ऑफ कम्युनिटी हो या फिर इवन एक्सपेक्टिंग द क्लिनिक्स और द स्कूल्स टू एनकरेज siblings to participate in education. I think younger generation के लिए ये हो सकता है कि आप, I know जब हम छोटे होते हैं हमको लगता है कि भाई या बहन को कहाँ लेके जाए, कैसे लेके जाए वाला होता है, बट हम यंगर एज में भी अगर हम अपने ही फ्रेंड सर्कल में जब हम खेलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो अपने सिबलिंग को साथ में लेके जाएं, वो मम्मी पापा के साथ हम इनकरेज करें. घर पे कोई बर्थडे पार्टी हो रही है तो प्रोबेबली अपना भाई जो स्पेशल नीड्स है उसके भी दोस्तों को बुला लें, उसके भी भाई बहनों को बुला, उसके क्लासमेट्स को बुला ले फॉर दैट सेलिब्रेशन. सो आई थिंक दैट्स हाउ नेबरहुड के लोगों को बुला ले. सो दैट्स हाउ आई थिंक धीरे धीरे कम्युनिटी सेंसिटाइज हो पाएगी एंड प्रॉब्ली यूल हैव ऑटोमेटिकली एक आपको एक गैंग ऑफ पीपल मिल जाएगा हु इज विलिंग टू सपोर्ट इन एनी वेंचर दैट यू अंडरटेक. सो थैंक यू. So I assume we don't have any more queries for today, or maybe if we do, we'll probably take up another session another day. Madam, before they give informal or formal vote of thanks, मैं मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम करूंगा. आप लोग 24/7 एनी टाइम हम लोगों की सर्विस ले सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया भी हम लोगों के कुछ ना कुछ लोग होंगे. धीरे धीरे आई एम वेरी श्योर प्रोफेशनल ग्रुप टू सपोर्ट योर नेटवर्क, हम लोग ऐसा इनिशिएटिव लेंगे तो धीरे धीरे वो ग्रुप भी स्ट्रेंथन होता जाएगा. तो आई कमिट माई सेल्फ, बाकी देखेंगे जो भी आता जाएगा जुड़ता जाएगा. विल सी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. I mean with the commitment too. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I have one query जाने से पहले, if there is a 5 minutes. Please tell. मैम जैसे अभी हम लोग काफी सारा डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग द सिबलिंग्स, वन सिबलिंग शुड सपोर्ट टू द अदर सिबलिंग. सो if the sibling do not want to support the other sibling, what should we do, or what should the other parents do, or what should the sibling should do? Otherwise if you see कि हमारे कम्युनिटी में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं या काफी सारे ऐसे सिबलिंग्स ही हम बोलेंगे कि जो अपने चिल्ड्रन में स्पेशल नीड को सपोर्ट ही नहीं करते हैं. अगर हम देखें वो हमारी जो इंडियन भाषा है, अरे तो पागल है, मैं इसके साथ कैसे रहूंगा, मैं एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ. तो व्हाट शुड द पेरेंट शुड डू, और द सिबलिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिससे वो लोग अपने दूसरे पेरेंट सिबलिंग को सपोर्ट कर सके. मैं बोलूं नितिका मैम? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. सबसे पहले तो सभी सिबलिंग्स मेरे से नाराज नहीं होना, मैं कुछ ऐसे बातें करता हूँ कि समटाइम यू मे फील बैड. इंडिया एक ऐसा देश बनते जा रहा है, या फॉर दैट मैटर मेनी वर्ल्ड कंट्रीज विकास के नाम पे ऐसे बनते जा रहा है. सिबलिंग विद स्पेशल नीड छोड़ दो, जो एबल बॉडीड सिबलिंग है वो एक दूसरे को मार काट के जिंदा रहने की ही प्लानिंग कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. ऐसे ही होने वाला है कि हम एक दूसरे को मदद, कोई सिबलिंग एक दूसरे को मदद करके एमिकेबल रिलेशनशिप से आगे बढ़ना, जो इंडियन इथॉस था, इंडियन कल्चर था, दिन ब दिन आप देखेंगे वो खट्टे जा रहा है. तो वो सिस्टम के ऊपर देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल प्रेशर बहुत ज्यादा, जिस वजह से ऐसा हो रहा है. कंट्री इज बिकमिंग वेरी कॉम्पिटिटिव. जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा वहाँ कोऑपरेशन वगैरह डेफिनेटली कम होता जाएगा. उस चीज को जब हम अवेयर होंगे उस बात को लेके, इफ आई एम अवेयर, हमें पता है ऐसा सेंटिमेंट लोगों में आ रही है, तो डेफिनेटली उसके पीछे रास्ता ये है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था, कि कैसे भी करके हमें पहले अपने लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. इसीलिए मैंने सिबलिंग ट्रेनिंग के जो करिकुलम है, जो पार्ट है, उसको कई सारा एरिया में बांटा. सेल्फ मैनेजमेंट इज ए वेरी बिग एरिया. जो सिबलिंग अपना सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा करेगा वही सिबलिंग बाकी एरियाज में अच्छा कर पाएंगे. तो डेफिनेटली सिबलिंग्स को आगे बढ़ने के लिए कोई अपना मन से किसी का दुश्मन नहीं है. इट इज ए नेचुरल रिएक्शन. नाउ व्हेन वी नो दिस इज ए नेचुरल रिएक्शन, तो उस सिबलिंग को सपोर्ट करना होगा सेल्फ मैनेजमेंट के लिए. जितना ज्यादा इंस्टीट्यूशंस या हमारे समाज या आप सब लोग मिलके, हम लोग मिलके सिबलिंग का सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को एनहेंस कर पाएंगे, उतना ही सिबलिंग का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता हुआ हमें दिखेगा. थैंक यू.
And I think उसमें दो लोग बहुत अहम रोल निभा सकते हैं. एक हम एज प्रोफेशनल्स कि अगर हमें दिख रहा है कि फैमिली थोड़ा डिस्ट्रेस में है या फैमिली रिलेशनशिप्स थोड़ा डिस्ट्रेस में है, तो हम लोग को एम्पैथी दिखाते हुए, इवन दो इट मे बी आउट ऑफ द jurisdiction of our work commitment, but I think we as professionals must also commit ourselves कि if we see the relationship dynamics going haywire within the family, so as professionals we should step in and give some guidance and try to provide as much support as we can. And second, again, I think जैसे सर ने भी already mention किया कि I think parents का वो जो stages of acceptance वाला था, वो जितना जल्दी हम empowerment की तरफ लेके जाएं, उतना जल्दी I think parents भी जब empower होंगे तो वो भी siblings को in turn empower करने में मदद कर पाएंगे. So these are two things that I think are also essential for such cases. एंड कौसर मैम, एक्चुअली आई वुड लाइक टू ऐड कि माइंडसेट चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा. वी ऑल्सो गेट द क्वेश्चंस कि ठीक है, यू आर सच एक्टिव सिबलिंग्स, बट मेरी बेटी को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर मेरे बेटे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ही जस्ट रन्स अवे एंड ऑल. But I think at Sarthi we are slowly working to normalize all these things. हम लोग स्टोरी लेके आ रहे हैं सिबलिंग्स के बाहर, उनके लाइफ के. हम लोग ये भी बता रहे हैं कि अरे Aman and Aditi, Aman is helping Aditi in running the cafe, or Aniket is helping, his brother is an artist, Jijo. So there are many examples in our group. धीरे धीरे करके हम लोग ये बाहर ला रहे हैं. So it will take time, but we definitely want to work with professionals tirelessly to change the mindset so that we better help ourselves also and our brothers also and sisters also. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको, आप लोग आपस में एक छोटा सा कंपटीशन कर लें और बढ़िया सा एक स्टिकर बनाइए. स्टिकर का टाइटल रखिए सिबलिंग्स और ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो है वो सुपर सिबलिंग्स है. Why they are super sibling, why they are superior than any other siblings. इस टाइप के चीजें जब आप करेंगे कि आपकी रेसिलियंस स्किल्स ज्यादा होती है, आपकी एंगर कंट्रोल ज्यादा होती है, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स ज्यादा होती है, आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स ज्यादा होती है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड डेफिसिट्स इन पीपल, यू अंडरस्टैंड एडवांटेजेस इन पीपल, यू कैन बी ए बेटर मैनेजर बिकॉज यू गॉट टू मैनेज लॉट ऑफ टाइम इन अ डिफरेंट वे. आपकी सिबलिंग की वजह से कई बार बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है. अभी भी बाकी सिबलिंग तो मजे में अपना पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए डबल ड्यूटी हो गया, खुद को भी संभाले और सिबलिंग को भी 24 घंटा संभाले. तो यू गॉट टू हैव लॉट ऑफ इंटरनल एडवांटेज. मुझे लगता है ये सारे एडवांटेज हमने कभी प्रॉपर रिसर्च भी नहीं किया हमारे देश में, उसका प्रोपेगेंडा भी हमने नहीं किया. आप लोग इस टाइप का मूवमेंट शुरू करिए. आई एम वेरी श्योर एट अ डीपर लेवल वी विल बी एबल टू हैव मोर इम्पैक्ट ऑन upcoming young siblings. वो ये सब चीजें जब देखेंगे पढ़ेंगे, they will understand yes इसका एडवांटेज भी है भाई. स्पेशल नीड होना एज ए सिबलिंग it may be treated as a very advantageous thing, क्योंकि इसकी वजह से मेरे में इतने सारे क्वालिटीज आ सकते हैं, इतने सारे मेच्योरिटी लेवल आ सकती है. आई कैन बिकम ए बेटर मैनेजर, आई कैन बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग, आई कैन बिकम बेटर प्रोडक्टिव. तो इसके ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं. मदद चाहिए तो मैं कर दूंगा. थैंक यू. Thank you, sir. So I think we can close the session for today, Piyush ji. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So I think on behalf of SASR, I would like to thank Dr. Das and Sarathi for organizing this program along with us. So and I hope this was a productive session for all the siblings present here today. और अगर आप लोग के कोई भी कुछ क्वेश्चंस हो जो अभी शायद आपको ध्यान में नहीं आए, बाद में आए, तो प्लीज फील फ्री. मैं हमारा ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स में दे रही हूँ, so please feel free to get in touch with us and let us know if there are any unaddressed queries. We'll be very happy to address them. नितिका मैम एक बार बता दीजिए, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, आप प्लीज एक बार सच बताऊंगी सर तो फिर आप एक्स्ट्रा बूढ़े हो जाएंगे. So चलिए, so anything else that you would want to add, Piyush ji or anyone from the Sarthi team? Thank you so much for this event. We are really looking forward to work with professionals, and that is what is very exciting for me.
So as sir said, like मैं बहुत खुश हो रहा था अंदर से because I am from engineering background and I am going into disability studies. तो I was like कि अरे वाह यहाँ पे तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है. So I'll be really very excited to work in the intersection of professionals and siblings in future, and we'll see how we can develop. We Sarthi is open to any project with SASR and all the organizations. No, wonderful. So thank you once again, everyone. Thank you. Have a very good evening ahead. Good night. Thank you. Good night. Bye. Bye-bye. It was lovely meeting all of you. Bye. Yes. Bye. Bye. Good night, all of you. Oh, one thing we forgot. Yeah. One thing we forgot. हमारे सारे स्पेशल सिबलिंग्स को एक बड़ा सा थैंक यू और उनके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया हमने, जो उन्होंने इतना मेहनत किया सब बहनों को और भाइयों को सजाने के लिए. सो स्पेशल थैंक यू टू ऑल द सिबलिंग्स जिन्होंने अच्छा खासा तैयार करा अपने भाई बहनों को. सो अ बिग थैंक यू टू सभी के भाई बहन. सॉरी मुझे सबके नाम नहीं पता, वरना मैं जरूर नाम लेके थैंक यू करती. Thanks, Gauri. Gauri is there in the screen. Yes. Yeah, Gauri is there. गौरी, मैं नेक्स्ट टाइम आने वाली हूँ मेकअप के लिए, मुझे कुछ नहीं आता. अरे वाह. जरूर आना. पक्का. थैंक यू. Thank you. Bye bye. Thank Bye. you. Take care. Love you all. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, bye.